اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم اجلاس ہوا ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی زیر صدارت، جس میں مانیٹری پالیسی بڑھا دی گئی ہے اور یہ 20% کر دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ 2% اس میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ 3% اضافہ ہوگا اور اب یہ 17 سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شرح سود اب 20% ہو چکی ہے، جو کہ ہائیسٹ ریٹ ہے، اور یقیناً اس سے جو کاروباری شخصیات ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے مہنگائی بھی مزید ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط مان لی گئی ہے۔ بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے جو شرائط عائد کی گئی تھیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا اور شرح سود اب 17% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے، جو کہ ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت پاکستان میں، جو کہ یقیناً آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور 300 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 17 سے 20% یہ شرح سود کر دی گئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شرح سود 17% سے بڑھ کر 20% ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری مانیٹری پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ شرح سود 3% بڑھا رہے ہیں، جس کے بعد شرح سود 20% ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود 3% بڑھانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ملک میں شرح سود 20% پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو، لیکن ابھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری مانیٹری پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ شرح سود کو 3% بڑھا رہے ہیں، جس کے بعد شرح سود 20% ہو گیا ہے۔ شرح سود کو 17% سے بڑھا کر 20% کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 23 جنوری کو شرح سود 1% بڑھا کر 17% کی گئی تھی، اور اب اس میں مزید 3% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے پیش نظر شرح سود میں اضافہ ناگزیر ہے اور مہنگائی 31.5% کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے ملک میں مہنگائی کم ہونے کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رواں مالی سال مہنگائی 27 سے 29% رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود 3% بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں شرح سود 20% پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% کا اضافہ کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ ابھی مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، مہنگائی اس طرح سے آگے بھی جو ہے دیکھی جا سکتی ہے۔ شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے یہ تمام تر اقدامات اٹھانا ہوں گے، جس کے بعد قبل از وقت یہ اجلاس بلایا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کی صدارت کی اور تمام تر معاملات پر غور کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر 2% شرح سود بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں 3% اضافہ کیا گیا ہے۔ 300 بیسس پوائنٹس اضافے کے بعد شرح سود اب 20% پر جا پہنچی ہے، جو کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے، اور آنے والے وقت میں اس حوالے سے مشکلات بھی یقیناً درپیش ہوں گی۔ اسپیشلی جو کاروباری کمیونٹی ہے انہیں شدید مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو شرح سود تھی اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ کر رہے ہیں اور 3% اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بلند ترین سطح 20% پر جا پہنچی ہے۔ مہنگائی کے پیش نظر شرح سود میں اضافہ کرنا ناگزیر تھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی 31.5% کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ مہنگائی کم ہونے کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے۔ رواں مالی سال میں مہنگائی کی شرح 27 سے 29% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید بھی اضافہ ہوگا، اور اسی کے پیش نظر شرح سود میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ 3% بڑھانے کے بعد 17 سے اب 20% کر دی گئی ہے، جو کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ عبدالحبیب خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عبدالحبیب، ممکنہ طور پر 2% کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب 300 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا اس میں۔ بالکل، دیکھیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج مانیٹری پالیسی کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور
300 बेसिस पॉइंट का इजाफा जो है वो सामने आया है देखने में, जिसके बाद शरह सूद 17% से बढ़कर जो है वो अब 20% पर पहुंच चुकी है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज जो है वो शरह सूद पहुंच चुकी है। और जिस तरह माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा था कि 200 बेसिस पॉइंट से 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उसके पेश नज़र जो है वो मजीद जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से इजाफा किया गया है। और स्टेट बैंक की जानिब से इसकी वजाहत भी की गई है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की जो शरह है, बिलखुसूस अगर फरवरी के महीने की बात करें तो 31.5% जो है वो महंगाई की शरह रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 300 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शराइत थी, IMF की भी शर्त थी, और उसके साथ जो इस वक्त मुल्की मौशी जो सूरत हाल है और जो चैलेंजेस का सामना है मुल्की मईशत को, उन तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के लिए शरह सूद में इजाफा इस वक्त जो है वो ज़रूरी था। दूसरी जानिब अगर कारोबारी तबके के हवाले से बात करें तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से इस इजाफे को जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये इजाफा सरासर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इंडस्ट्रीज को इससे बड़ा नुकसान होगा। 20% शरह सूद पर कारोबार करना और बैंकों से लोन लेना किसी सूरत भी जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो बड़ा इजाफा है 300 बेसिस पॉइंट्स का स्टेट बैंक की जानिब से आज बड़ा किया गया इजाफा है। अब्दुल हबीब, ये भी बताइएगा 23 जनवरी को भी शरह सूद में 1% इजाफा किया गया और अब 3% इजाफा कर दिया गया है, तो आने वाले दिनों में भी क्या शरह सूद में मजीद भी इजाफा हो सकता है? अब जो स्टेट बैंक की जानिब से आज इजाफा देखने में आया है, 200 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो तवक्का की जा रही थी, लेकिन उसके बरक्स आज 300 बेसिस पॉइंट जो है वो एकदम बढ़ा दिए गए हैं। तो उसके बाद जो 20% तक की डिमांड थी IMF की जानिब से कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट 20% तक ले जाया जाए, तो वो डिमांड जो है वो एक तरीके से पूरी कर दी गई है। उसके साथ साथ आज हमने ये देखा कि डॉलर और रुपी जो पैरिटी है उसमें भी खासा बड़ा जंप नजर आया। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 18 रुपए से ज्यादा जो है वो नीचे तक गिर चुका है। तो ये तमाम तर इकदाम सिर्फ और सिर्फ IMF के साथ जो मामलात हैं और IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जिसको इस हफ्ते में साइन होना है, उनको मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं और उन शराइत को पूरा किया जा रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए। तो अब ये तवक्का जाहिर की जा रही है कि मजीद शायद जो है वो इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन 20% आज जो है वो यकमुश्त तौर पर कर दी गई है 300 बेसिस पॉइंट इजाफे के बाद शरह सूद, जिसके बाद कारोबारी तबका जो है वो खासे परेशानी का जो है वो इस वक्त शिकवा कर रहा है। अब्दुल हबीब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, बाकायदा तौर पर क्या उनकी जानिब से कोई इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का प्लान है? चूँकि पाकिस्तान में ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है इस वक्त 20% और इस पर यकीनन जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ बेहद मुतासिर होंगी। बिल्कुल, देखें कारोबारी सरगर्मियाँ इसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो मुतासिर होंगी, ख़ास तौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ दीगर सनतें हैं, वो सनतकार इस वक्त खासे परेशानी का जो है वो इस वक्त शिकवा कर रहे हैं। और वो यही उनका कहना है कि जब 20% का मार्कअप बैंकों से लोन की सूरत में वापसी लिया जाएगा तो कारोबार के लिए लेने वाली जो लागत है वो पूरी नहीं हो सकेगी। उसके साथ साथ जो दीगर अफराद हैं ये भी जो है वो खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि जो दीगर लोग हैं, जो दीगर इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो अपना पैसा जो है वो बैंकों में रखवा के वहां से जो वो इंटरेस्ट रेट है उस पर 20 से 22% जो उनको मुनाफा मिलेगा, तो वो उसके जरिए अपने पैसे को बजाय किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के बैंकों में रख के महफूज करके खाएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और माहिरीन और सरमायाकार और उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है कराची समेत मुल्क भर की, उनकी जानिब से इसी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि 300 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद जो आज यकमुश्त तौर पर 20% पे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर इसका कोई असर देख रहे हैं फिलहाल आप? बिल्कुल, देखें आज तो कारोबार का एकदम जो इख्तिताम हुआ है वो मजबूत हुआ है, लेकिन कल इसके जो नताइज हैं यकीनी तौर पर सामने आएंगे। मार्केट जो है वो इसको नेगेटिवली एब्जॉर्ब करेगी और मार्केट में कल हम देख सकते हैं कि नुमाया किस्म की कमी कल 100 इंडेक्स में देखने को आई। ये भी बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि महंगाई कम होने के आगे कोई इम्कानात नहीं है और मुस्तकबिल करीब में भी शरह सूद में इजाफा हो सकता है, तो ऐसे में बिजनेस कम्युनिटी का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी पहले ही ये इस बात पे 17% जब स्टेट बैंक की जानिब से 23 जनवरी को जो है वो 1% इजाफे के बाद की गई थी शरह सूद, तो उस पर भी उनकी जानिब से तशवीश का इज़हार किया जा रहा था कि इस तरह के हालात में कारोबार करना मुश्किल नहीं होगा। और अब 20% जो इंटरेस्ट रेट किया गया है उसमें तो कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होंगी, इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ेंगे। फरवरी का हम पहले ही देख चुके हैं 31.5% के कल हमारे पास हाईएस्ट एवर जो है वो यहाँ पे नंबर्स आए थे इन्फ्लेशन नंबर। तो उसके बाद दोबारा
इस तरह के जो इजाफा स्टेट बैंक की जानिब अब्दुल से किया हबीब गया है। साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़ुबैर साहब। फरमाइएगा 20% इंटरेस्ट रेट जो कि मुल्की तारीख का हाईएस्ट इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, क्या कहेंगे आप? बिजनेस कम्युनिटी कितना अफेक्ट होगी इससे? देखिए बिजनेस कम्युनिटी जो देखिए सारा हमारा कैश फ्लो उसी पे डिपेंड करता है। और जब कैश फ्लो की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी और 20% पे पहुंच जाएगी, एक्चुअली अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट का उस गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। हम 7% पे कंफर्टेबल सेल कर रहे थे और हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। एक्सपोर्ट को जो है ना मुल्क की तारीख में हम $31 बिलियन पे ले गए, ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो है ना वो हेल्प सारी जो है ना वो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम IMF के एग्रीमेंट के साथ व्हाट वी आर डूइंग। अब ये जो बिजनेस ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टेक बैक होगा इंडस्ट्री के लिए और प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ने का भी इंदिया दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने ये भी कहा है कि शरह सूद भी आगे बढ़ सकती है। अभी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे में क्या इक़दाम किए जाएंगे? एक जो है ना दो ही चीजें हम कर सकते हैं ना, और हम ज़र मुबादला कैसे बढ़ा सकते हैं, हम रिजल्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप होम रेमिटेंसेस पे तवज्जो दें, दूसरा जो है आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो दोनों के अंदर जो है ना हम कोई खातर IMF हमें मल्टीपल एक्सचेंज रेट से मना करता है। अब बांग्लादेश के अंदर 7% जो है ना, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक कि वो 7% ज्यादा उनका रेट देते हैं होम रेमिटेंसेस को। और हमारे जो है ना लोग फिर जब हमारा इतना बड़ा फर्क मार्केट रेट में और बैंकिंग रेट में होता है तो फिर वो हुंडी के जरिए माल बेचते हैं, जिससे दोनों प्रॉब्लम हमारे लिए खड़े होते हैं और $2 के रेट भी बढ़ते हैं और जो है ना आपका होम रेमिटेंस भी कम होता है ऑफिशियल लेवल के ऊपर बैंकों के जरिए। दीज टू बोथ थिंग्स हम दोनों तरफ इट्स डबल एज सॉर्ड, उसको हम दोनों तरफ से उसको हम मार खाते हैं। आई थिंक कि जो ना वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज properly, looking at our ground realities and looking at what really can be done. ज़ुबैर साहब, डॉलर मुल्क में आ नहीं रहे, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बेल आउट पैकेज मिलना है IMF से लेकिन अभी तक उसकी शराइत जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। डॉलर आज हमने देखा ओपन मार्केट में जो है वो 290 तक जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो ये तमाम तर सूरत हाल किस जानिब पाकिस्तानी मईशत को लेकर जा रही है? इसका क्या जवाब हो सकता है, आप मुझे बताएं, मैं इसका क्या जवाब दूं? इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। जाहिर हम सब परेशान हैं, लेकिन एक बात भी ये भी पक्की है कि अगर हम डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान को कहते हैं ना दिवालिया नहीं देखना चाहते, तो फिर IMF की कंडीशंस को मानना होगा। गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर हूँ तो मैं भी और कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि जो है ना उनके डिक्टेशन को मैं लूँ और इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि इसके बगैर जो है ना मेरे को मेरे फ्रेंडली कंट्रीज ने भी मना कर दिया है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, चाइना ने $700 मिलियन दिए, बड़ी बात है उनकी, बड़ा शुक्रगुजार है उनके। और आप देखें बाकी जो है पेरिस क्लब, वर्ल्ड बैंक, आपके ADBP, चारों का जो है ना दारोमदार उसी पे कि आप पहले क्लियरेंस लेके आए आपकी IMF की, तो हम आगे बात करेंगे। तो सर देखा जाए तो IMF की शराइत जो हैं वो यकीनन बहुत सख्त हैं और ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इनकी शराइत मानने के अलावा। अगर बात की जाए IMF के दबाव पर सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जाती थी, वो भी अपॉर्चुनिटी उन सनतों से ले ली गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तो अभी जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है, तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? ऑप्शन हमारे पास यही बचते हैं कि हम जो है ना बगौर देखें हमारे अपने हालात को, और हम अपने हालात को देखकर हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री की मदद करें और जो है ना हम इंपोर्ट्स को कर्टेल करें। होम रेमिटेंसेस में कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आए ताकि हमारा 5-10 बिलियन वहां से जल्दी बढ़ जाएगा। IT सेक्टर को जबरदस्त किस्म का सपोर्ट करें जिसमें फौरी जो है ना आपकी जो है ना वो बढ़ सकती है। वो ये अगर ये काम है, फिर एक्सपोर्टर के जितने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, टेक्सटाइल और अलाइड जो 5 सेक्टर्स हैं, वो 60% आपका एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी बिजली बढ़ाने की जगह बिजली कम करनी चाहिए ताकि जो ना एक्सपोर्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव हो और हम आगे बढ़ें। सर अब आपको क्या लगता है कि IMF की जो शराइत हैं इस पे अमल दरामद करके क्या हमारी मईशत संभलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं होता ठीक, तब तक तो हम इस पर कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। ठीक ज़ुबैर साहब, जब कारोबारी कम्युनिटी मुतासिर होती है, कारोबार मुतासिर होता है, तो यकीनन पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो मुतासिर होती है और लोग जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो अभी कारोबारी तबका अगर परेशान है तो यकीनन जो सैलरीड क्लास है उसकी परेशानी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप लोगों की मुश्किलात के हवाले से कोई रिलीफ मिलता देख रहे हैं?
देखिए इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस तो हमको तैयार रहना चाहिए, आगे और मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, मुश्किलात और आएंगी, और अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो सबने मिलकर काम करना होगा, और ऐसी पॉलिसीज स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बनानी होंगी जिससे हम आगे करें। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल हबीब हमें आगाह कर रहे थे। अब्दुल हबीब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।